हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक। आज का एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है विच इज़ विद रिस्पेक्ट टू मॉक डिस्कशन, क्योंकि हमारा एग्जाम पास है और वी नीड टू हैव अवेयरनेस हाउ टू हैव एन स्मार्ट स्ट्रेटेजी with respect to solving question in business studies. Then we will also discuss strength and weakness areas, right? You will also get to know how to approach different types of questions. For example, single correct, match the column, comprehension based. Is there any technique available? Time management skill is an important skill in this examination. All right. I hope all of you have given this mock which has been provided to you. It is very important to practice mock regularly. This will give you self confidence. All right. The main aim of practice is to develop self confidence in your capabilities. एक बहुत अच्छी कोट है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. आई एनकरेज यू टू सॉल्व मॉक्स एज मच एज पॉसिबल, एंड ऑल्सो आफ्टर सॉल्विंग मॉक डू द एनालिसिस पार्ट. आज आपके जितने भी डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, आई वुड aim to solve each and every doubt you have. All right, so let's discuss AITS 10 All India Test Series mock number 10 of business studies. Question number 1: which of the following is not a category into which Fayol divided the activities of an industrial undertaking? All right, so while solving mocks you need to be aware. All right, do not be in a rush to quickly choose the correct option. You are provided with sufficient amount of time in your actual examination, right? Also, when you will practice mock on our platform, you will be provided sufficient amount of time. So whenever we look at this question, look, there are certain words, extreme words like not, no, only, ऑलवेज, ऑल राइट, सोली. तो ये जितने भी ऐसे वर्ड हैं, ये क्या कोनोटेशन प्रोवाइड करते हैं कि केवल यही सही है या केवल यही गलत है. बट विथ रिस्पेक्ट टू, यू नीड टू आइडेंटिफाई द मोस्टली जहां पे भी ये सारे वर्ड्स इंक्लूड किए जा रहे हैं वो मोस्टली 99% गलत होता है स्टेटमेंट. अब आपके पास 4 ऑप्शन हैं इस क्वेश्चन को लेकर. इसमें पूछा है कौन सी फेयोल की कैटेगरी नहीं है. Which is the following is not a category into which Fayol divided the activities of industrial undertaking? A technical, B commercial, C security and D quality. तो हमको फाइंड आउट करना है कौन सा नहीं है. ये तीनों पार्ट हैं उसका. क्वालिटी इज नॉट अ कैटेगरी. लेट अस चेक द सॉल्यूशन, ऑप्शन डी. ऑलराइट, ये आपको याद होना चाहिए. Certain topics like this you need to remember it thoroughly. Question 2. In organization E, debt has been fully issued. Okay. However, the chartered accountant suggests that company should always retain some bargaining power for the upcoming financial period to take care of unforeseen circumstances. Which of the following factors has been determined in the given case? A. Cost of debt. B. Cost of equity. सी फ्लेक्सिबिलिटी या फिर डी कंट्रोल. इस केस स्टडी में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फैक्टर जो है डिटरमाइन किया गया इस पर्टिकुलर केस में, और जो डेट है वो फुल्ली इशूड हो चुका है. ऑलराइट, आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी को इसमें ये लोग कहना चाह रहे हैं. लेट अस चेक ऑप्शन सी. फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर स्टेट्स दैट इफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज इशूड डेट टू इट्स फुलेस्ट, then the company cannot issue further debt. The organization must always have the remaining bargaining power to issue debt in emergencies. On the other hand, the cost of debt factor implies that if company wants a cheaper instrument, then debt can be issued by the company. Is that clear? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया जा रहा है और मैं एनकरेज करूंगा आप सोल्यूशन को पढ़ें. मैं और हमारी टीम ने इस सोल्यूशन को काफ़ी
रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि सोल्यूशन के अंदर आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स पढ़ने को मिलेंगे, हर एक टॉपिक को, हर एक सोल्यूशन को समझाया गया है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, it is a rate of return which is expected while issuing equity. That is why every company has the potential to issue debt up to a particular point, as this enhances the financial risk of the company. Control factor explains that issuing debts has no effect on control, while issuing equity weakens control within organization. All right. What is the significance of components of delegation in preventing role related issues? इसके बारे में पूछ रहा है ये, सिग्निफिकेंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ डेलीगेशन। चार ऑप्शन अवेलेबल हैं। दे एनकरेज ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, they discourage accountability and transparency, they lead to reduced efficiency in management, they prevent role confusion and redundant efforts. अब सिग्निफिकेंस की बात हो रही है, राइट? सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस। सो व्हाट डू यू थिंक, डेलीगेशन का क्या पर्पस है? ताकि वो कंफ्यूजन और रिडंडेंट एफर्ट्स को कम कर सकें। ऑलराइट, every other point is not significance, it is a limitation. Only option D is actually providing you the importance component of delegation while preventing role related issues. Option D. Now this is a case study based question. Business studies में case study based आपको solve करना होता है, right? When you will go for further studies like BBA or MBA, you will be provided with lot of case studies where you have to find out what kind of business activity is performing in that particular question or particular company. A reputable resort called Luxy 5 arranges birthday celebrations, kitty party and wedding anniversaries. Its popularity has declined during the past 6 months as a new resort with superior amenities and ambience sprang up nearby. Identify the feature of business environment that adversely impacts the Luxy's 5's business. अब आपको आइडेंटिफाई करना है। आप समझ गए केस स्टडी क्या पूछना चाह रही है? ऑप्शंस जो आपके पास अवेलेबल है, डायनामिक्स, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी या फिर रिलेटिविटी। आई थिंक ये बिजनेस डायनेमिक्स के बारे में बात हो रही है। द इंटरनल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बिजनेस एनवायरनमेंट विच इज डायनामिक इन नेचर। क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट क्या था? वी आर आस्किंग फॉर बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट, क्वेश्चन का डिमांड समझना जरूरी है। ओनली देन चूज द ऑप्शंस। व्हाई इट इज डायनेमिक? बिकॉज वेरी फ्रीक्वेंट चेंजेस कीप हैपनिंग इन डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड दीज चेंजेस इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेसेस इन वेराइटी ऑफ वेज, लाइक चेंज इन कस्टमर टेस्ट, एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी और एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिशन। अब इस केस सिनेरियो में जो इस केस स्टडी में दिया गया कि लग्जी 5 रिजॉर्ट जो है उसका बिजनेस इंपैक्ट हो गया, किसकी वजह से? एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर्स, विच हाईलाइट्स इट्स डायनेमिक नेचर। ऑलराइट, बाकी सब चीजें जो है आपको अनसर्टेनिटी, रिलेटिविटी और कॉम्प्लेक्सिटी आर नॉट द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ऑलराइट, ये आप पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स का कंपोनेंट है, टेक्नोलॉजिकल चेंज है, बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या कंपोनेंट है, सोशल एस्पेक्ट्स है और बाकी सब चीजें। क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द मेन कंसर्न्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन is that people refuse to report their concerns and issues to higher management of the company. Which of the following communication barriers is indicated in the statement? साइकोलॉजिकल बैरियर, सेमेंटिक बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, पर्सनल बैरियर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। यू नीड टू हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी अबाउट ऑल दिस 4 ऑप्शंस।
इसलिए मैं कह रहा हूं अपने कॉन्सेप्ट पर फोकस करो, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। कभी कभी कुछ क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा टफ है, बट अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, पर्सनल बैरियर। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज रिफ्यूज टू फाइल कंप्लेंट्स एंड रिपोर्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न ड्यू टू फियर ऑफ reprimand एंड अथॉरिटी। This shows that personal factors of employees restrict their ability to communicate with the company. The personal barriers include various personal factors that disrupt the communication. और बाकी जितने बैरियर हैं आपके, सेमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर। देखिए साइकोलॉजिकल बैरियर किस वजह से होता है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन एम्प्लॉइज, ऑल राइट, कि उसकी वजह से कम्युनिकेशन जो है उतना इफेक्टिव नहीं होता। सेमेंटिक बैरियर कब होता है? जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कोई मैसेज क्लियर कन्वे नहीं कर पा रहा हो, ऑल राइट। अब ये आपका कल्चर और लैंग्वेज से भी रिलेटेड होता है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। बट आपको क्वेश्चन का डिमांड समझना है। क्वेश्चन 6, वाई डू पार्टिसिपेंट सच एज कमर्शियल बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड्स पार्टिसिपेट इन द मनी मार्केट? A, B, C and D. To seek long-term investment opportunities, to earn high returns from risky assets, to raise short-term funds, to issue physical currency. बताइए क्यों पार्टिसिपेंट्स जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं मनी मार्केट में? क्या वजह है, क्या कारण है? हम किसके पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं? कमर्शियल बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। इनके हिसाब से क्या आंसर है? ऑप्शन सी, ये लोग रेस करते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स, ऑलराइट, हैंडलिंग शॉर्ट टर्म मनी शॉर्टेजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। They also use market to temporarily invest in extra funds with the aim of generating profit। अगर आसान शब्दों में बताऊं तो ये मनी मार्केट में कमर्शियल बैंक्स और म्यूचुअल फंड इसलिए आते हैं क्योंकि अगर इनको जब पैसे की ज़रूरत होती है, या फिर जो इनके पास ये कमाना चाहते हैं सरप्लस मनी, ठीक है, इसलिए इस कारण से ये लोग मनी मार्केट में एंटर करते हैं। और अगर इनके पास सरप्लस मनी है अवेलेबल तो उसको ये यूटिलाइज भी कर सकते हैं। कैसे करके? कुछ रिटर्न कमा के। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन 7, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम? ये आपको याद होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या, कौन कौन से लोग होते हैं, कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ये क्वेश्चन रिमेंबरिंग वाला क्वेश्चन है, ऑल राइट। इफ यू नो द आंसर यू विल choose the correct option. If you have no idea, then I would request to not waste time on any question because negative marking आपके CUT एग्जाम में होती है। तो जिसमें कॉन्फिडेंट हैं आप, अगर आप 50-50 भी फाइंड आउट कर लेते हैं तो आई एनकरेज यू टू चूज द ऑप्शन, ऑल राइट। बट इफ यू आर कंफ्यूज देन मूव ऑन। सो लेट्स लुक एट द करेक्ट ऑप्शन हियर। कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में कौन कौन से लोग होते हैं, मेंबर कौन कौन से होते हैं? It consists of a president and one female member. B, it consists of members occupied by Chief Justice of India. C, it consists of president and 2 other members. And D, it consists of president and 1 other member. The correct option is C. एक डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक प्रेसिडेंट होता है और 2 उसके मेंबर्स होते हैं, ऑल राइट। हम किसकी बात कर रहे हैं? जो कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम होती है, राइट, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट फोरम भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फोरम। ये एक क्या है? ये एक 3 टायर होता है कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करने के लिए। और किसके अंदर आता है ये? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। देखिए सोल्यूशन पढ़ने से क्या आपको मिल रहा है? आपको मल्टीपल पॉइंट्स की नॉलेज हो रही है, आपका रिवीजन भी हो रहा है, ऑल राइट। So reading solution is equally important. Question 8. ABC company recently implemented a computer-based control system. इसलिए to monitor the activities of its employees.
During the monitoring process, they discovered that an employee was consistently exceeding the predetermined standards of performance. Which of the following aspects of control is implemented here? अभी कंट्रोलिंग चैप्टर से लिया गया कंट्रोलिंग टॉपिक है हमारा. ऑल राइट. Accomplish organizational goals, making efficient use of resources, improving employee motivation या फिर judging the accuracy of standards. अगर हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, आपने सुना है कभी केपीआई क्या होता है? केपीआई होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये एक्यूरेसी मेजर करता है. यस, ऑप्शन डी. ऑलराइट. मॉनिटरिंग प्रोसेस में कंपनी ने अगर कंपनी ने डिस्कवर किया कि एक एम्प्लॉय कंसिस्टेंटली एक्सीड कर रहा है जो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं, तो मतलब ये फोकस कर रहा है कि एक्यूरेसी उस स्टैंडर्ड का मीट हो रहा है कि नहीं. ऑलराइट. अब मॉनिटरिंग एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने के लिए, आपको पता होना चाहिए. इस स्पेसिफिक सिनेरियो में जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड rather than the overall goals accomplishment. The scenario does not explicitly mention anything about the efficient use of resources. Is that clear? Question 9. What is the primary factor that determines entrepreneurship? ये जो चैप्टर है आपका entrepreneurship, ये इंपॉर्टेंट है. अब बताइए प्राइमरी फैक्टर क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप का डिटर्मिनेशन के लिए? द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल, द इंडिविजुअल परसेप्शंस ऑफ डिजायरेबिलिटी एंड फिजिबिलिटी, द डायनेमिक प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, द अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडीज. प्राइमरी फैक्टर क्या होता है? कोई भी आदमी, कोई भी महिला अगर कोई उद्यम लगाती है, शी और ही वांट्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर एंड वांट्स टू डू एंड प्रोवाइड वैल्यू इन while doing entrepreneurship, तो सबसे पहला कारण क्या होता है? सबसे पहला कारण होता है उसका इंडिविजुअल का परसेप्शन. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, द इंडिविजुअल्स परसेप्शन ऑफ डिजायरेबिलिटी एंड feasibility. All right, the primary determinant of entrepreneurship is an individual's perception कि वो उसको कर सकता है एज अ करियर चॉइस कि नहीं. परसुइंग एंटरप्रेन्योरशिप. अब बाकी जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं या कोई भी अलग फैक्टर होते हैं जिससे किसी भी इंडिविजुअल का डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है, अल्टीमेट चॉइस किसके पास होती है? एंटरप्रेन्योर के पास. ठीक है. अब वो असेस करते हैं कि वो एंटरप्रेन्योरशिप वायबल है, अट्रैक्टिव ऑप्शन है कि नहीं. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. पर्सनल मोटिवेशन, रिस्क टेकिंग प्रोपेंसिटी, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, उस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए. ये सारे फैक्टर शेप करते हैं किसी इंडिविजुअल की विलिंगनेस को लेकर. अब इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर कर सकते हैं. राइट. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज द वन बेनिफिट ऑफ पर्सनल सेलिंग इन टर्म्स ऑफ कस्टमर इंटरेक्शंस? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. तो क्या क्या फायदा होता है पर्सनल सेलिंग का जब हम अगर हम इसको कस्टमर इंटरेक्शंस को लेकर करें तो? ए, इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम, बी, एनहांस ब्रांड अवेयरनेस, सी, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप्स, या फिर डी, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर एनालिसिस. What do you think is the apt and accurate option among the provided 4 options? जब आप पर्सनल सेलिंग करते हो किसी भी प्रोडक्ट, राइट, आपने कभी देखा होगा अगर इंश्योरेंस वाले आपके घर पे आते हैं या फिर पॉलिसीज वाले, हेल्थ पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस, और आपके पेरेंट्स या एल्डर्स को प्रोवाइड करते हैं, तो आपकी एक बॉन्डिंग हो जाती है. ठीक है. ट्रस्ट बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि you are putting your hard earned money into a company
which will provide you protection in the term in during the emergency. सो डेवलप होता है पर्सनल रिलेशनशिप्स. आपको नाम याद होता है कि बैंक से मिस्टर एक्स और मिस वाई आए थे. ऑल राइट, यू हैव देयर नंबर. सो पर्सनल सेलिंग का डेवलप होता है पर्सनल इंटरेक्शन. ज़्यादा आप थॉट प्रोसेस को अगर किसी क्वेश्चन पे लगाओगे तो आप ओवर थिंकिंग करके आइडेंटिफाई कर दोगे रॉन्ग ऑप्शन. रीड द क्वेश्चन एंड बी कॉन्फिडेंट व्हेन यू चूज एन ऑप्शन. ऑल राइट, take your sufficient time. You will have sufficient time to solve each and every question of whatever type, whether you are solving comprehension. Only and only if it is possible when you have practiced mocks on a regular basis. If you are solving and practicing mocks and then later on participating in discussion, doing your self analysis, it will enhance your self confidence. That is the main purpose. All right. Question number 11. The force that connects all the management functions is A. Management, B. Planning, C. Coordination, and D. Staffing. The correct option is C. Coordination. All right, हम connection की बात कर रहे हैं. All right, whenever we are trying to connect in an organization, we are focusing on the goal, on the objective of coordination. Option C. All right. Every organization carries out interrelated functions to administer the organization. Every function works to accomplish specific organizational objectives. The procedure that helps connect all managerial functions is described as coordination. Organizations can connect each management function to attain the desired goals more effectively and efficiently with the help of coordination. Management is understood to be a procedure for getting work from other employees within the organization. Question number 12. How does planning promote innovation? कौन सा चैप्टर है ये? Planning. In the managerial process, आपके पास 4 ऑप्शन हैं. By setting goals and making predictions for the future, by forcing managers to think differently and assume future conditions, by focusing on routine tasks and procedures, by avoiding decision making and leaving things to chance. All right. सो प्लानिंग की बेसिस पे अगर हम प्रमोट कर रहे हैं इनोवेशन को, सो आई थिंक वो आपको पुश करता है, राइट, ताकि आप अपना जो थिंकिंग स्किल्स हैं उसको डिफरेंटली यूज करें. ऑलराइट, और असेस करें कि फ्यूचर में क्या कंडीशंस हो सकते हैं. सो एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज बी. प्लानिंग एनकरेजेस इनोवेशन बाय challenging the managers to think creatively and anticipate future circumstances. अब इस प्रोसेस से ये फायदा होता है कि आप नए नए आइडियाज और अप्रोचेस को अलग अलग टास्क के लिए अडॉप्ट करते हो. ऑल राइट, सो अडेप्टेबिलिटी एंड in the dynamic business environment is one of the key factors. 13. Which factor contributes to the critical nature of staffing in organizational performance? टॉपिक कौन सा है हमारा? स्टाफिंग. आपने अपने बोर्ड्स के एग्जाम के दौरान इस पर्टिकुलर चैप्टर, इस पर्टिकुलर टॉपिक से मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे, और विथ रिस्पेक्ट टू CUT NTA इस पर्टिकुलर टॉपिक का वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है. आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं A, B, C और D, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशनल साइज रिडक्शन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, या फिर डिक्रीज्ड इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस. अब क्रिटिकल नेचर ऑफ स्टाफिंग में देखिए, अगर हम अडॉप्ट करते हैं, राइट, तो ऑप्शन ए इज द मोस्ट एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन. हाउ कम? देखिए, effective staffing ensures that an organization has the right people
with necessary skills to leverage modern technologies, adopt to automation, and remain competitive in a rapidly changing business landscape. अब जैसे टेक्नोलॉजी कीप्स एडवांसिंग क्विकली, तो जो प्रोसेस है स्टाफिंग का, जिसमें हम लोग सही लोगों को ढूंढते हैं, उनको हायर करते हैं एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड टास्क के लिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, so that is the reason the option A, technological advancements, is the correct option for the demand of the question. 14, in order to select suitable individuals for the organization, what is the appropriate order for the HR manager to perform the selection process? अब ये order पूछ रहा है, आपके पास 4 स्टेटमेंट हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि पहला कौन सा होगा और उसके बाद सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट। अब 4 ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल हैं A, B, C और D में, पहले आप चारों स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। HR manager needs to invite shortlisted candidates for an interview. Second, HR manager needs to conduct aptitude test to check the knowledge. Third, a medical examination report needs to be submitted by the candidates. And fourth, HR manager needs to go through the received job applications and shortlisted candidate. Or fifth, the letter of appointment needs to be issued to the final selected candidates. All right. अब फाइनली क्या होता है, जो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है वो मिलता है, राइट। सो ऑप्शन 5 इज गोइंग टू बी द लास्ट ऑप्शन। ऑटोमेटिकली आपने एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके ऑप्शन बी और सी को हटा दिया, राइट। ऑप्शन 5 इज द राइट लास्ट ऑप्शन टू गेट करेक्टेड। नाउ व्हेन यू हैव 50-50 choices available to you, let's look option A and option D. The HR manager needs to go through the received job applications and shortlisted candidates. ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड है, HR manager needs to conduct aptitude test to check the knowledge. All right, according to statement, according to option 1, second, फोर्थ के बाद 2 है और फोर्थ के बाद 1 है। So what do you think? वो पहले ही शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को अप्लाई करेंगे? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राइट, ऑप्शन ए। 15th, arrange the following needs in the correct hierarchical sequence according to Maslow's hierarchy of needs theory. ठीक है, सेल्फ एस्टीम नीड्स, सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंगनेस नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये टॉपिक है आपका रिमेंबरिंग का। यू नीड टू हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ऑल राइट, आई एम टेलिंग यू इन बिजनेस स्टडीज फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स। ओके, so if you are aware and you have revised this topic, then you can directly solve and choose the correct option. Maslow's hierarchy theoretical क्या है? सबसे पर आता है हमारा फिजियोलॉजिकल नीड्स, ऑप्शन ए। ऑलराइट, फिजियोलॉजिकल नीड्स इज द फर्स्ट। सो ऑन द बेसिस ऑफ चूजिंग द फोर्थ एज वन, अगेन यू हैव अप्लाइड एलिमिनेशन टेक्निक। आई हैव टोल्ड यू कि मैच द कॉलम क्वेश्चंस हो गए या सीक्वेंशियल ऑर्डर क्वेश्चंस हो गए, ऑलराइट, या फिर आपका इवेंट्स बेस्ड क्वेश्चन हो गए। इन पर्टिकुलर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में, या फिर चौथा अरेंज आपका चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इन 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आप एलिमिनेशन टेक्निक को यूज कर सकते हैं और आपकी प्रोबेबिलिटी जो होती है करेक्ट ऑप्शन को चूज करने की, वो रेज हो जाती है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब मैस्लो कौन था? मैस्लो एक साइकोलॉजिस्ट था। क्या किया था उसने? उसने बताया कि एक इंसान को 5 तरह की नीड्स की ज़रूरत होती है। अब उसने उन 5 को आइडेंटिफाई किया कि पहले कौन सी है और लास्ट में कौन सी है।
सबसे पहले मैस्लो के हिसाब से था फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती है? जैसे हंगर, थर्स्ट, शेल्टर एंड स्लीप। सेकंड बताया उसने सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स में क्या सब आता है? अच्छा, आपकी जॉब सिक्योरिटी, आपकी स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, ये सारी आपकी सेफ्टी नीड्स हैं। तीसरा है आपका बिलोंगिंगनेस नीड्स। अब बिलोंगिंगनेस नीड्स का मतलब कि आपके जो रिलेशंस हैं, अच्छा आप समाज में, सोसाइटी में कैसे रह रहे हैं। ऑल राइट, ये सामाजिक जो आपकी नीड्स होती हैं, ये तभी आती है जब आपको फुलफिल हो जाता है बिलोंगिंगनेस नीड्स। उसके बाद आता है आपका सेल्फ एस्टीम नीड्स। अब ये नीड्स किससे रिलेटेड हैं? ये रिलेटेड हैं आपके रेस्पेक्ट और रिकॉग्निशन से। सोसाइटी में कितना आप अर्न कर रहे हैं, और मतलब कितना आपने किया है। ऑटोनॉमी स्टेटस, आप क्या खुद के कंट्रोल में है। ऑल राइट, ये सारी चीजें सेल्फ एस्टीम। और लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैस्लो के हिसाब से जो हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड है हायरार्की थ्योरी में, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कि हम सभी इंसानों को अपना पोटेंशियल हासिल करना चाहिए, और वो इंसान हमको बनना चाहिए जिसके हम बनने लायक हैं। इज दैट क्लियर? नाउ यू कैन आंसर। अगर ये क्वेश्चन आता है मैस्लोस थ्योरी के बारे में, आपके एनटीए में हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस क्वेश्चन को लाए, तो अब आप करेक्ट मार्क कर सकते हैं। ऑल राइट, 16th है अरेंज द प्रोसेस बाय विच अ फर्म्स मैनेजमेंट फोकसेस ऑन अटेनमेंट ऑफ डिफरेंट गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स इन द करेक्ट ऑर्डर। ऑल राइट, ये अगेन एक सीक्वेंशियल बेस्ड स्टेटमेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इसमें एक भी आइडेंटिफाई कर लिया, ऑल राइट, कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सेकंड क्या, या फिर लास्ट, तो एलिमिनेशन टेक्निक का यूज ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में बहुत इजीली होता है। ऑल राइट, एलिमिनेशन टेक्निक जैसे आपको पता ही है कि आपने एक आंसर, एक फ्लो चार्ट में आपने एक आंसर को, एक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपके पास 50-50 चांसेस प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब अगर हम इन पांचों स्टेटमेंट्स को देखें, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। अगर किसी कंपनी को कोई गोल अचीव करना है, तो सबसे पहले क्या करेगी? वो आइडेंटिफाई करेगी कि उसके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। राइट, आप इसको अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लो, और अगर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी, अगर आप बिजनेस स्टडीज का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो आपको पूछ रहा है सिक्वेंशियल ऑर्डर रिगार्डिंग गोल्स, कौन से चैप्टर से? प्लानिंग चैप्टर से। राइट, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई। ऑल राइट, सेकेंड स्टेप क्या होता है? जनरेटिंग रेवेन्यू। अब देखो, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर रेवेन्यू जनरेशन भी तो जरूरी है सर्वाइवल के लिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, तो रेवेन्यू जनरेशन जरूरी है। ऑल राइट, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है? जनरेटिंग प्रॉफिट, ताकि एक इंसेंटिव रहे कंटिन्यूड ऑपरेशन के लिए। दोनों, ये तीनों चीजें एक के बाद स्टेप बाय स्टेप होती हैं। उसके बाद क्या आता है? ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करना। ठीक है, कैसे बड़ा होता है? जब नए नए ऑपरेशंस, नए नए प्रोस्पेक्ट को हम इंक्लूड करते हैं, बाय एडिंग न्यू प्रोस्पेक्ट फॉर ऑपरेशंस। और फाइनली क्या होता है? आफ्टर passing all these steps, your organization is creating a value for the society at large. तो हमने पहला क्या ऑप्शन पढ़ा? आइडेंटिफाइंग। और क्या ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन सी में देखिए आपको दिया गया है कि आइडेंटिफाइंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स फर्स्ट स्टेप है। तो अगर आपको यही पता है कि फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन, ऑल राइट, तो आप इजिली इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। Always remember the first step is to identify. Identification. अब आपने एलिमिनेशन टेक्निक को लगाया। अगर आपको इसके बाद के स्टेप्स पता भी नहीं है, तो आपने एलिमिनेशन टेक्निक को लगाकर, सबसे पहला स्टेप ये होता है, आपने सारे ऑप्शन चेक किए। अगर आप लकी हैं तो ये ऑप्शन, अगर ऐसे इस क्वेश्चन में तो एक 3C पे ही था, यू जस्ट चूज द करेक्ट। हाँ, लेकिन एलिमिनेशन टेक्निक के साथ एक टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको कॉन्फिडेंट होना होगा अपने चूज किए गए ऑप्शन पे। ऑल राइट, इफ यू आर कॉन्फिडेंट, चूज द ऑप्शन एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 17। डैश रेफर्स टू अ प्लान दैट, ये फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है।
which includes the entire gamut of activities as well as organizational policies and how it will contribute to the overall business plan. All right, आपके पास चार ऑप्शन है, प्रोग्राम, पॉलिसी, मेथड एंड रूल. व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट एप्ट? अब ये क्या बोल रहा है कि एक ऐसा प्लान होता है ये जिसमें पूरा का पूरा एक्टिविटीज जो भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होती है और वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा ओवरऑल बिजनेस प्लान में. तो क्या ये मेथड होता है, क्या ये रूल है, या प्रोग्राम? करेक्ट ऑप्शन है ए. ऑलराइट, प्रोग्राम्स बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट होते हैं जिसमें प्रॉपरली डिफाइन होता है ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, टास्क और नेसेसरी रिसोर्सेस. रिसोर्सेस का मतलब ह्यूमन रिसोर्सेस एज वेल एज फिजिकल रिसोर्सेस. इज दैट क्लियर? Question number 18. Mr. A is responsible for keeping tools, machines, and materials ready for operations for the associated workers. As per the functional foremanship, the role of dash is highlighted here. A. Inspector, B. Gang boss, C. Repair boss, D. Speed boss. What do you think is the right answer? I think the right answer is gang boss. अब गैंग बॉस कितना अच्छा टर्म है, राइट? अब एक गैंग का बॉस कौन होता है? चलिए पढ़ते हैं. अ गैंग बॉस इन फंक्शनल foremanship is responsible for keeping the required machine, materials, tools और बाकी सारे आइटम्स रेडी फॉर ऑपरेशन बाय वर्कर्स. हम गैंग बॉस किस में बात कर रहे हैं? बिजनेस स्टडीज में. ऑलराइट लर्नर्स, स्पीड बॉस कौन होता है? जो रिस्पॉन्सिबल होता है टाइमली कंप्लीशन. आप समझ गए. रिपेयर बॉस कौन होता है? एंश्योरिंग प्रॉपर ऑपरेटिंग एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ टूल्स एंड मशीन्स. और इंस्पेक्टर कौन होता है? क्वालिटी ऑफ वर्क को प्रेजेंट करने में. अब आता है आपका मैच द कॉलम. Entrepreneurship Development Institute in India, David McClelland sees and acts on opportunities, use of influential strategies. कॉलम 2 में आपको चार ऑप्शन दिए गए. कॉलम 1 में आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा किसके साथ करेक्ट होता है. हमने क्या फाइंड आउट किया था अपने एनालिसिस में कि मैच द कॉलम टाइप ऑफ क्वेश्चन में अगर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई भी एक ऑप्शन करेक्ट, ऑलराइट, हमको कोई आइडिया होती है तो एलिमिनेशन टेक्निक के बेसिस पर हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को का सही सोल्यूशन का सही ऑप्शन मार्क कर सकते हैं. अब यूज ऑफ इन्फ्लुएंस स्ट्रेटजीज जो होता है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को सीख करता है एवरीडे एक्सपीरियंस से. ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक 4 इज no. 4 is 2. Use of influence, providing leadership. Yes. Let's check whose 4 is. Only option C is denoting. Let me check the answer. Option C. All right. So 1 is 4th. Entrepreneurship development मतलब set of 15 competencies. David McClelland, competency approach to human resource development. Sees and acts on opportunities. Sees business opportunities in everyday experience or influence. Is that clear? Please go through the solution, read it very smartly. Question number 20. अब आपको कॉलम 2 में चार ऑप्शन है जिसका आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट इसके साथ सही है. ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन. ये आपने अपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा और अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं तो आपने पॉलिटिकल साइंस में भी इन सारे टॉपिक्स को पढ़ा होगा. इसलिए मैं बार बार आपसे एनकरेज करता हूँ कि अगर आप एक सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके पास एक एक्स्ट्रा एक एक्स फैक्टर होता है कि आप सारे सब्जेक्ट्स को एक इंटर रिलेट करके उनके चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करके पढ़ सकते हैं. ऑलराइट, ग्लोबलाइजेशन आपके सारे टॉपिक्स में पढ़ाया गया होगा.
अब आपको अगर उतनी भी अवेयरनेस होगी क्योंकि आपने अपने बोर्ड एग्जाम को देखा है, बोर्ड एग्जाम को सॉल्व किया है, उसी से टोटली अलाइंड हमारा एनटीए का सिलेबस है. लेट अस रीड द गिवन ऑप्शंस. ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज टू प्राइवेट सेक्टर, ये होता है हमारा प्राइवेटाइजेशन. ऑल राइट, सो लेट्स चेक 3 का 2 किस में दिया गया है. ओनली इन ऑप्शन ए जो थर्ड पॉइंट है कॉलम 1 का, वो कॉलम 2 के सेकेंड पॉइंट से करेक्टली मैच कर रहा है. और जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया, तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर. अगेन हमने मैच द कॉलम क्वेश्चंस में क्या अप्लाई किया, एलिमिनेशन टेक्निक को अप्लाई किया. तो आपके पास ये सब स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, ऑल राइट, टाइम मैनेजमेंट के लिए, ताकि अगर आपको किसी क्वेश्चन में इशू आ रहा हो तो आप ये सारी टेक्निक को अप्लाई कर सकें. अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन करेक्ट सीक्वेंस. अब देखिए फिर से ये सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन आ गया. ऑल राइट, बिजनेस स्टडीज में 100 परसेंटाइल स्कोर करना इज वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटीज इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन या तो केस स्टडी होंगे या मैच द कॉलम या फिर सीक्वेंस बेस्ड. अब सीक्वेंस बेस्ड में हमने क्या पढ़ा था जस्ट 2 क्वेश्चन पहले, कि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन टास्क होता है कि पहले आइडेंटिफाई करें. ऑल राइट, और यहां पर क्या दिया गया है थर्ड पॉइंट में आपको दिया गया है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. तो पहला स्टेप क्या होता है, किसी भी प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की बात हो रही है, राइट, हम ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन. अब थर्ड किस में दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी इज एलिमिनेटेड. अब आपके पास क्या बचता है, 50-50 प्रोबेबिलिटी. अब आपके पास हायर चांस है करेक्ट ऑप्शन को चूज करने का. लेट अस गो थ्रू द ऑप्शन बी फर्स्ट. अब ये कह रहा है कि आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन का. अब इसमें आपको अपना कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए. You must focus on the concepts which is being provided to you in our PPT as well as in your NCERT. In real terms, ये step correct है. After identification, it is the departmentalization. So option B is the correct answer. All right, learners. इस तरह के क्वेश्चंस को हमने आपको इसलिए प्रोवाइड किया है क्योंकि जब हमने PYQ एनालिसिस किया था तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस अलग अलग मल्टीपल स्टूडेंट्स के पेपर से आए थे वो इसी तरीके से आ रहे थे. सो आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में अब अवेयरनेस हुई है. ओके, द मेन थिंग इज टू आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन फ्रॉम विच इज गोइंग. देखिए एनटीए सरप्राइज कर सकता है बट ज़्यादा सरप्राइज के एलिमेंट्स नहीं होंगे. क्वेश्चन नंबर 22, अरेंज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इन सिक्वेंशियल ऑर्डर. देखिए अगेन ये सिक्वेंशियल ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन है. अब लेकिन टॉपिक चेंज हो गया. उसमें हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनाइजिंग टॉपिक को, अब हम पढ़ रहे हैं कंट्रोलिंग, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इन सिक्वेंशियल ऑर्डर. आपके पास 5 ऑप्शन अवेलेबल है. सेटिंग स्टैंडर्ड्स, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, एनालाइजिंग डेविएशंस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स और फाइनली टेकिंग करेक्टिव एक्शंस. अब जाहिर सी बात है, अब आप इमेजिन कीजिए आप खुद की तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम्स की, तो आप सबसे लास्ट स्टेप क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शंस लेंगे. तब आपने आइडेंटिफाई कर लिया सब कुछ कि यार ये तो मैंने देख लिया, मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस इतनी है, मैंने अपने आप का स्टैंडर्ड इतना सेट कर रखा था, मेरा बार इतना हाई है, पर मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस इतनी हो रही है, तो अब मैं इसमें करेक्ट क्या कर सकता हूँ. तो ऑटोमेटिकली आपने देखा कि ये लास्ट स्टेप होगा. ऑप्शन 5 विल बी द लास्ट स्टेप. अब आप चेक कीजिए चारों ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, फिफ्थ को लास्ट में केवल ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में दिया गया है. तो बी और डी अगेन एलिमिनेट हो गए. ऑल राइट, अब चेक करते हैं कि ऑप्शन 1 में क्या है, 1 2 3 4 5. अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 1 उन्होंने कहा है कि जो प्रोवाइड किया गया ये सही है. ऑप्शन सी में क्या है, 1 2 4 3 एंड 5. सो setting standards is the first thing. All right, measuring actual performance is second, and then the third is
comparing actual performance with the standards. All right, only then you will be able to analyze deviation. So according to us, according to that, option C is correct. Let us check the solution. Option C. All right, ये होता है correct sequence. तो that is why I am encouraging you कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो तो एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करो. अब आता है फिल इन द ब्लैंक्स. ये तो आपको पता होगा या नहीं पता होगा. दैट्स ऑल. The holders of the assets can sell their financial assets by leveraging the financial market mechanism. This falls under the dash function of financial market. कौन सा टॉपिक है? फाइनेंशियल मार्केट. ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है. अगर आपको कॉन्सेप्ट के क्लियर है आप तब भी आइडेंटिफाई कर सकते हो करेक्ट ऑप्शन. पहला है रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट, दूसरा है प्रोविजन ऑफ लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, तीसरा है प्राइस डिटर्मिनेशन और फोर्थ है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स. अब बताओ, अगर आपके पास एसेट है, ठीक है, तो आपको अपनी फाइनेंशियल एसेट को बेचना है. ठीक है, क्या लेवरेज कर रहे हो आप? फाइनेंशियल मार्केट के मैकेनिज्म को. तो ये कौन से फंक्शन के अंडर आएगा? फाइनेंशियल मार्केट के. इसके लिए आपको कंसेप्ट्स अपने स्ट्रॉन्ग रखने होंगे. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. प्रोविजन ऑफ लिक्विडिटी. आप किसी चीज को सेल क्यों करते हो? ताकि आपके पास कैश आ सके. और लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है? तरलता. तरलता मतलब आपके पास तुरंत कैश आपको मिल जाएगा. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. इज दैट क्लियर टू यू नाउ? ऑलवेज ट्राई टू लुक फॉर द कीवर्ड्स. आप जब इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स के अगर आप स्टूडेंट हैं और आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लीजिए. उन कीवर्ड्स के बेसिस पर आप आइडेंटिफाई कीजिए जो ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं कौन सा प्लॉजिबली करेक्ट हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सोशल डायमेंशंस ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट. देखिए ब्रॉड एनालिसिस करना चाह रहा है. ये पूछ रहा है कि जो सोशल डायमेंशंस होते हैं किसी बिजनेस एनवायरनमेंट के, ओवरऑल एग्रीगेट के बारे में बात कर रहा है. कौन से सोशल डायमेंशंस को एक्सक्लूड कर सकते हैं? ठीक है, पहला है लिटरेसी रेट, कितना है एक सोसाइटी में. दूसरा है सोशल फोर्सेस लाइक कल्चरल बिलीव्स और ट्रेडिशन. तीसरा है फ्लक्चुएशन जो होता है हमारी करेंसी की वैल्यू में. या फिर चौथा है ओपिनियन टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स एंड लाइफस्टाइल ऑफ कंज्यूमर्स. हम किस डायमेंशन को केटर कर रहे हैं? सोशल डायमेंशन को. इज दैट क्लियर? और सोशल डायमेंशन के हिसाब से प्लॉजिबल ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी. इसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं क्योंकि फ्लक्चुएशन करेंसी में क्या हो रहा है उसका सोशल डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं है. वो इकोनॉमिक डायमेंशन का, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव का पार्ट है. ऑलराइट, ऑप्शन सी राइट. अब पहले तो आप ये समझो इस क्वेश्चन में बिजनेस एनवायरनमेंट में कितने एलिमेंट होते हैं. हम जब भी, अब आप हायर स्टडीज में जा रहे हो, आप मल्टीपल कोर्सेज ज्वाइन करोगे, बीबीए, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, बीकॉम, जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे ना उसको मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट पे डिवाइड कर दो. पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, लीगल और एनवायरमेंटल. ये 6 ब्रॉड डायमेंशंस होंगे हर एक सब्जेक्ट मैटर के. ऑलराइट, और अगर ये आपको क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके का आ जाए आप सॉल्व कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 25. सम लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आर आउटलाइन टू असिस्ट एम्प्लॉय overall growth for future and improvement in all respects. Which of the following aspects of staffing is highlighted? Education, training, development and selection. क्या बात कर रहा है कि जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज किसी एम्प्लॉय को प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो अपने फ्यूचर में ग्रो कर सके, तो ये कौन सा एस्पेक्ट है स्टाफिंग का? स्टाफिंग चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बताइए. ये तो डायरेक्ट आंसर है. ये तो डेवलपमेंट एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, है ना. डेवलपमेंट का मतलब वेरियस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज जो प्रेजेंट की जाती हैं किसी इंडिविजुअल को
ताकि उनका ओवरऑल ग्रोथ हो सके फ्यूचर में। हम उसके ओवरऑल इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं सभी सभी एरियाज में, केवल प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है, उसका पर्सनल एनहांसमेंट भी हो, पर्सनैलिटी एनहांसमेंट, ताकि वो अच्छे इंसान बन सके rather than जस्ट कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज। ऑल राइट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डेवलपमेंट। अब एजुकेशन करेक्ट क्यों नहीं है? देखिए, एजुकेशन का मतलब होता है एक मेथड, मतलब उसके ज्ञान को बढ़ाना, इंक्रीज एंड एनहेंसिंग नॉलेज, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रहेंशन, ये सारा एजुकेशन का पार्ट है। ट्रेनिंग क्यों नहीं है? ट्रेनिंग का मतलब एक प्रैक्टिस जो एम की जाती है कि एक सर्टेन काइंड ऑफ एटीट्यूड को आप अपने साथ लेकर चलो, सर्टेन स्किल्स होने चाहिए, सर्टेन कैपेबिलिटीज होनी चाहिए किसी भी स्पेशलाइज्ड टास्क को कंप्लीट करने के लिए। नाउ यू नो द करेक्ट ऑप्शन इज डेवलपमेंट। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी? कीवर्ड क्या है यहाँ पे? टाइम स्टडी। ठीक है, चार ऑप्शन आपके को दिए गए। ऑप्शन ए, establishing standards and incentive schemes and calculating working hours. B, determining the employed workers and calculating labor cost and working hours. C, calculating the working hours, rest interval duration and rest interval frequencies. And D, ascertaining the number of workers to be employed, developing suitable incentive schemes and calculating labor cost. अब टाइम स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अगर आपको मालूम है, आपने सीधा करेक्ट ऑप्शन चूज किया होगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। टाइम स्टडीज डिफाइंस द एवरेज टाइम टेकन टू कंप्लीट अ क्लियरली डिफाइंड ऑपरेशन। ऑब्जेक्टिव टाइम स्टडी का क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? डेवलपिंग अप्रोप्रिएट इंसेंटिव प्रोग्राम्स एंड कैलकुलेट लेबर स्पेंडिंग। इज दैट क्लियर? 27, which of the following acts has repealed and replaced? समझ गए इसका मतलब, repealed और replaced का? The Monopolies and Restrictive Trade Practices Act of MRTP Act 1969, आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा इस एक्ट को। ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, Essential Commodities Act 1955. I think option B is correct. Competition Act 2002 ने रिप्लेस कर दिया है MRTP एक्ट को। अब ये एक्ट क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर्स को कंपनीज के मैल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट। ठीक है, इतना ही आपको जानना है, इतना ही सिलेबस में आपको दिया गया है। इज दैट क्लियर? Match the column. Column 1 with column 2. Semantic barrier, psychological barrier, personal barrier, organizational barrier. ठीक है, अगर इन चारों बैरियर में से ये किसके बैरियर है? ये कम्युनिकेशन टॉपिक से लिया गया है। अगर आप क्वेश्चन के टॉपिक को आइडेंटिफाई कर लेते हो ना, इसका मतलब आपकी तैयारी काफी अच्छे लेवल की है। ऑल राइट, so let us check one by one. Semantic barrier का मतलब होता है पुअर यूसेज ऑफ वर्ड्स एंड फॉल्टी ट्रांसलेशन। लेट अस चेक फर्स्ट का 3 किस में दिया गया है? केवल ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में। हमने फिर से मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन में एलिमिनेशन टेक्निक का यूज किया और 50-50 प्रोबेबिलिटी हमारी बढ़ गई। अब हमारे पास बचे हैं 2 ऑप्शन, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। पहले हम चेक करते हैं ऑप्शन ए को। सेकंड का दिया गया है 4th, मतलब साइकोलॉजिकल बैरियर को दिया गया रॉन्ग परसेप्शन अगेंस्ट द स्पीकर। एग्जैक्टली, ये करेक्ट है। 3 का दिया गया है 1 पर्सनल बैरियर, पुअर कम्युनिकेशन ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। एज यू कैन सी, ऑप्शन ए, सेमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, पर्सनल बैरियर और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ये सारे कम्युनिकेशन के चैलेंजेस होते हैं। ठीक है,
मैच द कॉलम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, सेंसेक्स, OTCEI, NSE और बदला। ठीक है, incorporated under Companies Act 1956, established in 1992, settlement carry forward system represents how stock market has performed. ऑप्शन सेंसेक्स जो है, सेंसेक्स का क्या दिखाता है, ये स्टॉक मार्केट को दिखाता है। सो ऑप्शन 1 इज फोर्थ एंड आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस ऑप्शन। लेट मी चेक, 1 का 1, 1 का 4 ये बता रहा है, 1 का 1 ऑटोमेटिकली ऑप्शन बी इज करेक्ट। मुझे बाकी 3 ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट कि सेंसेक्स represents how the stock market has performed. Option B. All right, learners, be smart. A company has a net income before interest and tax of rupees 7 lakh and a capital employed of 35 lakhs. Calculate the return on investment for the company. Okay, अब आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बताना है, ROI। आइए देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है। आई थिंक सी होना चाहिए, यस, बिकॉज ROI का फॉर्मूला क्या होता है, नेट इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 7 लाख अपॉन 35 लैक्स 200, क्या आ गया, 20%। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, देखिए न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको किस चीज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। Which of the following factors has the most influence on fixed capital requirement during the purchase of new assets? सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका होता है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट पे? टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, बिजनेस ग्रोथ फैक्टर, ऑल्टरनेटिव्स टू फाइनेंसिंग या फिर ऑपरेशन स्केल। बताइए आपने क्या मार्क किया था इसमें? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ऑल्टरनेटिव्स टू फाइनेंसिंग। कैसे? देखिए जब भी कोई न्यू परचेज को एसेट करते हैं, ठीक है, न्यू एसेट को जब भी परचेज करते हैं, the most important factor that impacts the need for fixed capital is alternatives to financing। कैसे आप उसको फाइनेंसिंग कर रहे हो। एक वेल स्टैब्लिश्ड मार्केट के पास कई ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, इट कैन एनेबल अ बिजनेस टू परचेज एन एसेट ऑन रेंटल लीज, ठीक है जी, विदाउट इन्वेस्टिंग एक ह्यूज अमाउंट, आप रेंट पे ले लो। दिस फैक्टर impacts the requirement for fixed capital when any new assets are purchased। और जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है वो इंपॉर्टेंट तो है, जिससे बिजनेस ग्रोथ का एक्सपेंशन हो सके। ऑपरेशन स्केल किसके लिए इंपॉर्टेंट है, इम्प्रूवाइजेशन हो सके ऑपरेशन स्केल, ठीक है। और क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, मोस्ट इन्फ्लुएंस ऑन फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल के बारे में बात हो रही। 32, which leadership style is characterized by a leader who gives orders and expects subordinates to obey them without question? Autocratic, democratic, laissez-faire and participative। करेक्ट ऑप्शन इज ऑटोक्रेटिक। वो आप सुनने को तैयार ही नहीं है, कोई आपसे क्या कहना चाह रहा है। आपने जो बोला, जो मैंने बोला वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, इधर माई वे और इधर हाई वे, ठीक है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेटिक। The leader has significant control over decision making and there is typically no involvement from team members. While this style can be effective in situations, it requires quick decisions or where there is a clear expert in the group. Okay. 33. Why was the introduction of dematerialization of securities necessary? A, B, C or D? To promote physical share certificate trading, to eliminate the need for stock exchanges, to simplify the process of buying securities, to address issues related to theft, forgery and paperwork. What do you think is the correct option? Option D, डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि जो भी थेफ्ट हो या फॉर्जरी हो या पेपर वर्क जो था, मतलब फिजिकल शेयर ऑफ सर्टिफिकेट से, उसको कम कर सकें, ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ले आए। ऑलराइट, अब ऐप बेस्ड आप स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज करते हैं, सिक्योरिटीज बाय एंड सेल करते हैं, ठीक है। इससे सिक्योरिटी बढ़ गई है,
और रिस्क भी कम हो गया थेफ्ट और फॉर्जरी का। ऑलराइट। 34 व्हाट नेगेटिव आउटकम कैन अराइज। नेगेटिव आउटकम की बात हो रही है, हाईलाइट द कीवर्ड। इफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर इज नॉट प्रोवाइडेड टू द पर्सनल, decreased employee turnover, reduced recruitment cost, instability and insecurity among employees, improved organizational efficiency। तो डायरेक्ट है सी, अगर आपने किसी को अपने काम पर रखा है आप, ठीक है, या फिर आप कहीं काम पर कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कर रहे हैं, तो आपको पता नहीं है, आप इनस्टेबल हो, कब आपको निकाल दिया जाए, ठीक है, इनसिक्योरिटी होती है। सो इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी अमंग एम्प्लॉयज कैन हैव अ नेगेटिव आउटकम। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? नेगेटिव आउटकम के बारे में। When employees feel uncertain about their job security and tenure, it can lead to decreased morale, increased stress, and a lack of commitment to organization. ठीक है, column 1, column 2, match the column question and goal oriented process, pervasive, multidimensional और intangible force। ठीक है, तो multidimensional को पहले देखते हैं। Management is needed in all types of organization in every environment. Management units of all the efforts of organization to achieve predetermined objective. Management is not only related to any activity but to work, people and operation। I think 3 का 1 है, इसमें दिया गया है only in option C। ये मेरा तरीका था सॉल्व करने का, ठीक है, मुझको मल्टी डायमेंशनल का मतलब पता है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कॉलम 2 में कौन सा मोस्ट एप्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। तो मेरे हिसाब से 3 का 1 है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, गोल्स के बारे में, परवेसिव, साइज, इंडस्ट्री और लोकेशन, मल्टी डायमेंशन, मल्टी फेसेटेड एक्टिविटी जिसमें लोगों का, ऑपरेशन का, सबका इन्वॉल्वमेंट होता है, इंटेंजिबल, कैन नॉट बी सीन और टच्ड। 36 which of the following statements best describes the nature of planning in terms of mental activity? A, B, C or D? Planning requires emotional engagement and physical execution of tasks. Planning involves intellectual activity encompassing foresight, intelligent imagination and sound judgment. Planning is a thoughtless process that does not involve intelligent thinking. Planning focuses solely on generation of new alternatives and does not involve mental effort। तो बताइए बेस्ट डिस्क्रिप्शन कौन सा होगा नेचर ऑफ प्लानिंग का इन टर्म्स ऑफ मेंटल एक्टिविटी? ऑप्शन बी, जिसमें फोरसाइट हो, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन हो और साउंड जजमेंट भी इन्वॉल्व होता है प्लानिंग में। ऑलराइट, हम मेंटल एबिलिटीज की बात कर रहे हैं। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक कॉग्निटिव प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें इंटेलेक्ट का यूज होता है और इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, वो फोरसाइट करते हैं कि क्या हो सकता है, इमेजिनेशन और साउंड जजमेंट भी इसमें एक क्रिटिकल फैक्टर होता है। ऑलराइट। 37 हाउ डू कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओस डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन अबाउट कंज्यूमर प्रॉब्लम्स? अब इसमें कीवर्ड्स क्या हैं? एनजीओस, ठीक है, और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्वेश्चन ने क्या पूछ रहा है कि एनजीओ कैसे जो इंफॉर्मेशन होती है उसको डिसेमिनेट करते हैं कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम्स को लेकर। अब आपके पास 4 ऑप्शन है। कंडक्टिंग कंपैरेटिव टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, बी पब्लिशिंग पीरियोडिकल्स एंड पब्लिकेशंस, सी डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री सैंपल्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट, या फिर डी कंडक्टिंग डोर टू डोर सर्विस। आपके हिसाब से आप सोचिए सबसे एप्ट ऑप्शन कौन सा है? कोई कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है या कोई एनजीओ है, वो कैसे लोगों तक मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर सकता है? ऑप्शन बी, जब पब्लिकेशन करके, पब्लिश करके, ठीक है, उससे मास लेवल पे उनको पता हो जाएगा। अब बाई पब्लिशिंग पीरियोडिकल्स और बाकी मटेरियल्स वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम को। इज दैट क्लियर? बाकी सारे जो ऑप्शन है वो बहुत ही लिमिटेड स्कोप है। ऐसा नहीं है कि ये सब कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओ नहीं करते हैं कि प्रोडक्ट का आपस में टेस्ट करना, बट लेकिन वो इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट है, जो क्वेश्चन की डिमांड है, उसके हिसाब से ऑप्शन बी इज द करेक्ट
Correct option. 38. Several factors should be considered by the company while making financial decisions. ठीक है. Which of the following factors is considered for financial decisions? Okay. 4 फैक्टर हैं. पहला है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट्स या फिर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट. Which of the following factor is considered for financial decisions? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन डी होना चाहिए, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट. यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट. अब पहले तो ये सोचो कि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्यों है इंपॉर्टेंट, एक फाइनेंशियल डिसीजन क्यों. किसी सबसे पहले जिस बिल्डिंग में वो कंपनी काम कर रही है उसका रेंट, जो लोग उनके लिए काम कर रहे हैं उनकी सैलरी और इंश्योरेंस, ये 3 बड़े फैक्टर होते हैं फाइनेंशियल डिसीजन के. अब आपको समझ में आ गया, जो ये फिक्स्ड ये सारे के सारे खर्चे फिक्स्ड हैं. अब कंपनी अपने खर्चों को कम करती है, इट नीड्स टू लोअर फाइनेंसिंग कॉस्ट. ठीक है, वो कम डेट लेना चाहती है. ऑल राइट, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. बाकी फर्दर डिस्कशन हम अलग टॉपिक में करेंगे. एन ऑर्गेनाइजेशन नोटिस बोर्ड डिस्प्लेस अ वैकेंसी नोटिस डिटेलिंग द जॉब रोल्स एंड ड्यूटीज. ठीक है, किसी एक पोजीशन के बारे में. विच रिक्रूटमेंट मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर दिस केस. एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपने नोटिस बोर्ड पे एक डिस्प्ले किया है कि ये जॉब पोजीशन खाली है और ये इसकी जॉब ड्यूटीज हैं. अब बताओ कौन सा रिक्रूटमेंट मेथड बेस्ट है इस केस के लिए. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एडवर्टीजमेंट, वेब पब्लिशिंग या कैजुअल कॉलर. आई थिंक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सबसे प्लॉजिबल ऑप्शन रिक्रूटमेंट मेथड है, ऑप्शन ए. ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को एक क्लासिफिकेशन है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट मेथड का, जहां पे नोटिसेस पुटअप किए जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस के नोटिस बोर्ड पे एक गिवन डेट पे कैंडिडेट्स आते हैं अपना वॉक इन इंटरव्यू के लिए और फिर डिसीजन ले दिया जाता है वहीं पर, क्या होगा क्या नहीं होगा. इज दैट क्लियर? एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट मेथड. 40. Match the column. Financial planning, fixed assets, current liabilities, working capital. Okay. So support business operations, gap between current assets and liabilities, forecasting financial needs, credit obligations of business. Okay. Financial planning का most apt मुझे लग रहा है forecasting financial need. 1 का 3 इसमें है. अगेन आई एम कॉन्फिडेंट कि फाइनेंशियल प्लानिंग फोरकास्ट करता है फाइनेंशियल नीड को, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई हैव चोजन ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑल राइट, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट और फ्यूचर फाइनेंशियल नीड. फिक्स्ड एसेट्स का मतलब जो बिजनेस ऑपरेशंस में हेल्प करे. करंट लायबिलिटीज क्या होते हैं, एक क्रेडिट ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करते हैं किसी भी बिजनेस का. और वर्किंग कैपिटल क्या होती है, ये गैप होता है बिटवीन करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो अलाउ करते हैं किसी भी बिजनेस को अपने ऑब्लिगेशन को अचीव करने में, चाहे वो कैश के थ्रू करें या कैश के बेसिस पर. इज दैट क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 41. अब देखिए 41 to 50 कौन से होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चन. So let's solve this comprehension. The management structure can be seen as a communication chain. In centralized organization where top management makes all decisions, information moves slowly through many levels, causing delays in responses. This sluggishness hampers quick decision making and makes it hard for business to adjust to changing conditions. On the other hand, in a decentralized setup, decisions are made closer to where actions happen without needing approval from numerous levels. This speeds up the process, reduces the risk of information distortion and bypasses lengthy channels. Is that clear? Communication के आधार पे आपका ये पूरा क्या है comprehension. Why does the information flow sluggish in centralized organization?
The top management is distant from the points of action. Decisions are taken at multiple levels. Information channels are shorter. Approval is not required for decisions. Do you think option B is the correct option? Option A is the correct answer because top management is distant from the point of action. क्योंकि multiple levels पे involved होता है, right? Hierarchy. Before reaching the decision makers, this process involves sluggishness in the information flow. All right. ये जो डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है ना, ये डिले करते हैं इंफॉर्मेशन क्रिएट करने में. बहुत सारी लेयर्स होती हैं जब तक बात पहुंचती है डिसीजन मेकर्स के पास, तो रिस्पॉन्सेज टू इश्यूज और चेंजेस टेक्स लॉन्गर. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स अडेप्ट बेटर टू डायनेमिक ऑपरेटिंग कंडीशंस? सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड, इनफॉर्मल और बोथ सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड. लुक, इसमें क्या पूछ रहा है, ये डायनेमिक ऑपरेटिंग कंडीशंस के बारे में पूछ रहा है. डायनेमिक कौन अडॉप्ट करता है? डिसेंट्रलाइज्ड, जिसके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर हो जो अडेप्टेबिलिटी वाले फीचर एलिमेंट को एक्सेप्ट करे. ठीक है. डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी अलग अलग लेवल पर प्रोवाइडेड होती हैं ताकि क्विक रिस्पॉन्स मिल सके, एडजस्टमेंट हो सके सर्कमस्टांस के हिसाब से. और जो एजिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस होती है ना एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में, वो डायनेमिक कंडीशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करती है. पर सेंट्रलाइज्ड कंडीशन में क्या होता है, ऐसे स्ट्रक्चर्स में जो केवल एक ही है टॉप टू बॉटम, और बहुत स्लो होता है. ऑलराइट. 43. Why is the information less likely to get distorted in decentralized organization? Information flow through many channels. Top management is integrally involved in the process. Lower level employees make decisions. Points of action are distant from decision maker. What do you think? What is the reason that it is less likely to get distorted? Huh? What is the main reason? Because employees are able to take decision. Option C. All right. Lower level employees make decisions. In decentralized organization, decisions are made by lower level employees who are closer to the points of action and possess better understanding of the local context. इसी proximity की वजह से जो actual operations और interaction होते हैं likelihood information distortion के, वो उसमें से improve हो सकते हैं. Decision makers have direct grasp. 44. How does communication chain typically operate in a centralized organization? Information flows slowly through many levels. Decisions are made closer to where actions happen. Response times are quick as possible. Making decision is not done by top management. अब centralized में तो पता है information बहुत slow जाती है. Option A, right? Option A is the correct answer, as you can identify. 45. Why is quick decision making challenging in a centralized organization? Lower level worker make all the choices, ये तो हो नहीं सकता. Information moves quickly through many channels, ये भी नहीं है. All decisions are made by top management and information is slow. Yes, there are no delays in responses. Again, easy to identify. In comprehension, you have a probability to score 100 percentile. 10 के 10 क्वेश्चन सही हो सकते हैं. Alright, option C is the correct answer. डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो होती है वो प्राइमरली टॉप मैनेजमेंट के पास होती है और इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा हायरार्की से होकर गुजरता है इसके डिसीजन होने लेने से पहले. अब इतना स्लो मूवमेंट होती है इंफॉर्मेशन की अलग अलग लेवल्स पे कि वो डिसीजन मेकिंग में डिले कर देता है. इसकी वजह से क्या होता है, चैलेंजेस क्रिएट होते हैं और जो अलग अलग सिचुएशन डायनेमिक कंडीशन के हिसाब से एड्रेस नहीं हो पाते हैं. इज दैट क्लियर? क्वेश्चन 46 to 50. सेकेंड कॉम्प्रहेंशन. ऑल्दो द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी स्ट्राइव्स, हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, टू इफेक्टिवली एड्रेस द क्लाइंट वांट्स, some people who place more importance on societal and environmental issues have criticized it. These opponents warn against the business seeking clients' happiness mindlessly as their only goal. They stress that ethical issues should not be ignored in the pursuit of client satisfaction. For instance, businesses should refrain from fulfilling a customer's request for medicine just to appease them. Additionally, it is best to avoid offering some items just to satisfy customers because they may have negative environmental impacts. The ethical and ecological limits of our society must constantly be in line with the customer pleasure, guaranteeing a balanced approach. All right. Why has marketing concept attracted criticism? A. It fails to satisfy the needs of consumer. It advocates fulfilling customer requests without ethical consideration.
इट इग्नोर द इंपॉर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग क्लाइंट्स वांट्स इफेक्टिवली, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इट प्रायोरिटाइजेस सोसाइटल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज ओवर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म क्या है इसका? ऑप्शन बी, कि वो सिर्फ और सिर्फ विद एथिकल कंसिडरेशंस के अपने क्लाइंट की जो फुलफिलमेंट है, डिजायर है, उसको पूरा करने में लगे रहते हैं। ऑल राइट, विदाउट एनी कंसिडरेशन एथिकल प्रिंसिपल्स। 47, what is the potential consequence of ignoring ethical considerations in the pursuit of customer satisfaction? A, short term loss but term societal gain. Long term, increased profitability and customer loyalty, improved business reputation and increased client satisfaction. Profits in the short term but long term societal and ecological issues. All right. सो आई थिंक पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस की बात हो रही है यहाँ पे। अगर हम एथिकल कंसिडरेशंस को इग्नोर करेंगे तो डी होगा इसका करेक्ट आंसर। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट तो होगा बट लॉन्ग टर्म में आपको इकोलॉजिकल और सोसाइटल इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। ऑल राइट, इमीडिएट सेल्स और कस्टमर रिटेंशन तो होगा बट लॉन्ग टर्म में क्या होगा? जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, सोसाइटल और इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के, वो काफी डैमेजिंग होगा आपके कंपनी के रेपुटेशन के लिए, और कस्टमर ट्रस्ट जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। 48. What is the example of potential social ill mentioned in the passage? A, B, C or D? Fulfilling customer requests without ethical standards, ये तो दिया ही हुआ है। Overemphasis on effectively meeting client needs, नहीं। Harmful effects of certain products on the environment, no। Companies prioritizing customer satisfaction over profits, again no। Option 1। All right, क्लियरली दिया गया है आपको यहाँ पर एथिकल इश्यूज के बिना। ऑल राइट, 49, ऑप्शन ए। What should be the relationship between customer satisfaction and society, ethical and ecological aspects? Very good question. बताइए, customer satisfaction should always prioritize ethical and ecological concerns. Customer satisfaction should be achieved at any cost, even if it harms society and environment. Ethical and ecological concerns should be disregarded in favor of customer satisfaction. Customer satisfaction should be within the ethical and ecological बाउंड्रीज ऑफ सोसाइटी। ये देखिए तीनों नेगेटिव टर्म है, ऑलवेज, एनी कॉस्ट, डिसरिगार्ड, ये पूरा मीनिंग चेंज कर देते हैं। तो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट सोल्यूशन। लेट्स चेक इट। यस, ऑप्शन डी। Relationship between customer satisfaction and society's ethical and ecological aspects should be balanced. This means that while businesses aim to satisfy customer needs, preferences, they should also consider ethical implications and the potential environmental impact of their products and practices. 50. What is the main argument against the mindlessly following the goal of customer satisfaction? It hinders company making profit. नहीं, ये तो होगा ही होगा। All right, हम आर्ग्यूमेंट फेवर में थोड़ी बता रहे हैं, हम अगेंस्ट में बता रहे हैं। क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट के डिमांड के हिसाब से हमको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इट फेल्स टू मीट द नीड्स ऑफ कस्टमर्स रिस्पेक्टिवली, रॉन्ग। इट लीड्स टू सोसाइटल एंड एनवायरमेंटल हार्म, यस। इट रिस्टोर्स एथिकल एंड ecological aspects of society. So option C is the correct answer. Option C. The main argument against mindlessly following the goal of customer satisfaction is that it tends to disregard societal and environmental ethical concerns. Solely focusing on fulfilling customer desires without considering ethical principles and environmental implications, businesses may engage in actions that may harm society or the environment in the pursuit of short-term gains. Beyond customer satisfaction, businesses should pay attention to social, ethical and environmental aspects of marketing. Is that clear? Comprehension का क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। You just have to go through the comprehension one time and then analyze your conceptual clarity. Is that clear? Focus on the concept. थैंक यू लर्नर्स, थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन। आपने देखा इस मॉक डिस्कशन में कैसे हम लोग किस क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं, एलिमिनेशन टेक्निक को कैसे यूज कर सकते हैं, कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये पेपर जो होगा ये आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का होगा। हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट। यू हैव ऑल द पोटेंशियल इन योर सेल्फ, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। जो आपको सवाल कॉन्फिडेंटली आप सॉल्व कर सकते हैं पहले उसको सॉल्व करें। ऑल राइट, हैप्पी लर्निंग।